Hi everyone, very good morning to class 7 student. In this video I will cover chapter 13 science of class 7. Chapter name is motion and time. So let me tell you one thing. I am starting this chapter first because as per the syllabus given by the authority we have to complete first 13 and 14. So the chapter name is motion and time. So time what is time? So एवरीबडी हम लोग हमेशा टाइम का पीछे पड़ता है. ये टाइम कितना हो गया, इतना टाइम में ये काम कंप्लीट करो, इतना टाइम में, जैसे कि योर पेरेंट्स यूज टू टेल आधा घंटा में ये पढ़ के कंप्लीट करो. सो ऑलवेज वी डील विद टाइम. एंड व्हाट इज़ मोशन? So motion in brief you can say like if any particle is changing their position from one place to another, so that is motion. So now I will tell you some types of motion. So there are different types of motion. For example, some will go in a straight line, some will go in a curved line, and some will go in a circular form, and some will go periodic. That is, it will go again, it will come back, again it will go, and it will come back. So this is called what? Periodic. Mainly three type. अंडरस्टूड? मतलब मेन में कितना टाइप है? एक तो स्ट्रेट है, सर्कुलर है और पीरियडिक है. नाउ यू कैन सी सम एग्जांपल इज गिवन. सोल्जर इन ए मार्च वर्स. सो सोल्जर इन ए मार्च वर्स विल बी व्हाट? सोल्जर इन ए मार्च वर्स विल बी स्ट्रेट. सो क्या होगा? और नेक्स्ट क्या दिया है? ब्लॉक कट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड. सो ये भी क्या होगा? along a straight line होगा. Now hands of an Atlantic in a race. So race में Atlantic का hand क्या होगा? उसका हाथ सीधा जाएगा. So this is also straight line. Now pedal of a bicycle in motion. So सबने bicycle देखा है तो उसका pedal कैसे घूमता है? गोल गोल घूमता है. So it will be what? Circular motion. Now next, motion of the earth around the sun. So around the sun motion, around the sun earth का motion क्या होता है? Earth will rotate around, so circle. Now motion of a swing. Motion of a swing मतलब वो क्या होगा? एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, एक बार जाएगा फिर वापस आएगा. So that is what? Periodic. Again motion of the pendulum is also what? Periodic. Now slow and fast. So हमें ये slow है, ये fast है, हमें कैसे पता चलता है? No, by doing comparison. Suppose you and your friend is walking. So if the another is going फॉरवर्ड देन यू, आपसे ज़्यादा स्पीड, आपसे थोड़ा आगे जा रहा है तो उसका स्पीड क्या है? ज़्यादा है. नाउ फॉर एग्जांपल, एक देयर इज़ वन कार एंड वन बाइसाइकिल. ओके, सो कार इज़ गोइंग इन 1 आवर. एक घंटा में कितना? 1 आवर. 1 आवर में कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर. ओके, सो वन कार इज़ गोइंग 30 किलोमीटर इन 1 आवर. एक घंटा में वो कितना किलोमीटर कवर करता है? 30 किलोमीटर. और एक बाइसाइकिल है, वो एक घंटा में कितना? 10 किलोमीटर. सो बाइसाइकिल जो एक घंटा में कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा? 10 किलोमीटर. सो फ्रॉम हियर वी कम टू नो दैट द बाइसाइकिल इज स्लोअर एंड द कार इज़ फास्टर. सो इससे हमें पता चलता है कि बाइसाइकिल स्लो है और कार फास्ट है. इन दिस वे वी कम टू नो. नाउ the distance moving by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slow. For example, imagine you have gone to see of your friend at a bus stand. Suppose you are standing pedaling your bicycle at the same time as the bus begin. Now come to next point, that is speed. तो speed हम लोग बोल रहे हैं कब से speed. तो speed, what is speed? तो स्पीड हमें कैसे पता चलता है कि ये इसका स्पीड इतना स्पीड में चल रहा है, ये इतना स्पीड में चल रहा है. सो हाउ वी कम टू नो? द मोस्ट कन्वीनियंट वे, सॉरी आई विल टेक द ब्रश. द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज फास्टर is to compare the distance moved by them in the unit time. So unit time means from time we come to know. Suppose two vehicle is going. So 1 hour में वो 1 आवर में एक व्हीकल है, 1 आवर में कितना कवर करता है? 30 किलोमीटर. और एक दूसरा व्हीकल है, वो 1 आवर में कितना कवर करता है? 20 किलोमीटर. देन वी कैन से द स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर. जो 30 एक घंटा में जो 30 किलोमीटर जा रहा है उसका स्पीड क्या है? उसका स्पीड ज़्यादा है. सो thus if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. So एक घंटा में कौन सा बस कितना ट्रैवल कर रहा है? कार हो, बस हो, बाइसाइकिल हो, कुछ भी, मतलब फॉर एनी व्हीकल्स.
फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूवमेंट हो रहा है, जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका मतलब इस अगर टाइम पता चलता है, इन विच टाइम, कितना टाइम में वो कितना किलोमीटर जा रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस और टाइम। सो उसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। वी कॉल द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। When we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग बोलते हैं ये कार 50 किलोमीटर स्पीड में जा रहा है कि नहीं। सो हाउ वी कम टू नो दैट द कार इज़ गोइंग इन ए 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इट, इट इम्प्लाइज दैट it will cover a distance of 50 kilometer in 1 hour. So if we say the speed of the car or the speed of the bus is 50 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर कवर करेगा, दैट वी राइट 50 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो व्हाट इज स्पीड? होप एवरीबडी अंडरस्टूड। यू कैन सी हियर द स्पीड हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। स्पीड मतलब उसका एवरेज स्पीड ऑफ द कार को हम लोग स्पीड बोलते हैं। स्पीड और एवरेज स्पीड इज सीन इन दिस बुक। वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो स्पीड, एवरेज स्पीड को हम लोग क्या बोलेगा, ओनली स्पीड। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड कैसे फाइंड करना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उससे क्या करना है, हमें उसका टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करना है। गॉट इट? क्या करना है, स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है उस और कितना टाइम में कवर किया है, सो उस टाइम से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेक। एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम इज़ वेरी इजी फॉर अस नाउ। अभी तो मेजरमेंट ऑफ टाइम इज़ वेरी इजी। वाई इट इज़ वेरी इजी? देयर इज़ वॉच विद अस, हम लोग के पास वॉच है, वॉल क्लॉक है, मोबाइल है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी थिंग, डिजिटल भी है। सो अभी तो मेजर ऑफ टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर इफ़ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, हाउ विल यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़? अगर टाइम वॉल क्लॉक नहीं होता तो टाइम कैसे डिसाइड करता हम लोग? हैव यू एवर वंडर हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडो? पहले ज़माने में हम लोग का जो सीनियर है, एल्डर्स है, उन लोग को कैसे पता चलता था? जस्ट उन लोग को अपना शैडो देख के, धूप का अंदर अपना शैडो देख के उन लोग को पता चल जाता था कि ये कितना टाइम है। अप्रोक्सीमेट मतलब वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, जैसे कि ये अभी शायद लाइक 12:30 अराउंड 11:30, तो उसको बोलेगा अभी 12 बज गया, लाइक दैट दे कैन से द अप्रोक्सीमेट टाइम बाय द शैडो। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल? ए मंथ, ए ईयर। तो हम लोग 1 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आई एम फिर एक 1 मंथ आवर स्कूल इज़ क्लोज। सो इसको हम लोग कैसे काउंट करता है? आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एंसेस्टर जो हम लोग का पुराना ज़माना का जो हम लोग का एल्डर्स था, एंसेस्टर था, उन लोग ने क्या ऑब्जर्व किया? उन लोग ऑब्जर्व किया कि कोई भी जो मतलब इवेंट होता है नेचर से जो भी इवेंट होता है, तो वो क्या होता है, एक टाइम में डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, वो रिपीट होता है। सपोज एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, हम लोग का अर्थ भी, सन क्या होता है, राउंड रोटेट होता है कि नहीं? तो वो डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये वो चीज़ जो अपना आप रिपीट होता है। सो फ्रॉम दैट दे हैव डिसाइडेड, दे फाउंड दैट द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग। द टाइम बिटवीन one sunrise and next was called a day. Similarly, a month was measured from one new month. जैसे कि जब भी सनराइज होता है तो उनको पता चलता है ये क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया। और 1 मंथ का कैसे पता चलता है? जैसे कि न्यू मून, आज न्यू मून आया है, फिर नेक्स्ट टाइम जब न्यू मून फिर से आएगा तो उसको क्या बोलेगा, 1 मंथ। गॉट इट? ए ईयर वॉज फिक्सड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन ऑफ द सन। जब अर्थ सन को रिवोल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है, जब भी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है उसको हम लोग क्या बोलेगा, 1 ईयर।
और एक जब न्यू मून एक बार आता है फिर वापस जब आता है तो उसको क्या बोलेगा 1 मंथ। तो उससे उन लोग को पता चलता है कि ये 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और ये इतना साल इतना साल। अंडरस्टूड? सो ऑफ्टन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन डे। Clock or watch are perhaps the most common time measure device. Have you ever wondered how clock and watch measure time? कभी देखा है कि मतलब जो क्लॉक होता है वो टाइम किसे बताता है, कैसे टाइम को मेजर करता है? The working of clock is rather complex, but all of them use some period motion. सब क्या होता है, एक पीरियड मोशन यूज होता है। वेल नोन पीरियडिक मोशन इज डेट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हम सिंपल पेंडुलम ये सब क्या है, एक पीरियडिक मोशन है। अंडरस्टूड? नाउ सी दिस फिगर 13.4 ए। सो द पेंडुलम एट रेस्ट, इट मीन्स पोजिशन। ये क्या एक अपना पोजिशन में है, रेस्ट में है। when the bow of the pendulum is released after taking it slightly to one side, एक साइड में इसको स्लाइटली लेके जाके उसको क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, तो वो क्या होगा, एक जगह जाएगा। मीन्स फ्रॉम बी पोजीशन इट वाज इन रेस, ये 0 ओ पोजीशन ये क्या है, इसका रेस में है। फिर वो ए पोजीशन था उसको खींच के लेके आएगा, फिर ए पोजीशन को उसको ए पोजीशन से उसको छोड़ देगा, तो वो कहाँ तक जाएगा, बी पोजीशन। फिर ये बी पोजीशन का बाद फिर वापस ए पोजीशन में जाएगा, फिर बी पोजीशन जाएगा, फिर वापस ए पोजीशन जाएगा। अंडरस्टूड? When the bow of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begin to move to and fro. ये to and fro जाएगा, एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, एक बार जाएगा वापस आएगा, to and fro जाएगा। Now B, the to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. तो उसको क्या बोलते हैं, एक periodic motion और oscillatory। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, इस मूवमेंट को बोलते हैं ऑसिलेटरी। ये कितना ऑसिलेटरी, एक बार ऐसे गया फिर वापस आया, वन टाइम, वन ऑसिलेटरी। अंडरस्टूड? To A, to B, and back to O. The pendulum has completed one oscillation when it moves from one extreme position A to the extreme position B and back to A. समझ में आया ये क्या बोला है? तो one complete oscillation, किसको हम लोग one complete oscillation बोलेगा? When this bob from position A, from O you will take to this side, from A you will take to this side, and when you will leave from here it will go to position B, again it will come back to position A, and this complete movement is called one oscillation. Okay, in a period time it will go one oscillation, means A position से B जाके फिर वापस A जाएगा, तब उसको बोलेगा one oscillation. Understood all of you what is one oscillation? Okay. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. यूनिट ऑफ टाइम मतलब टाइम का जो यूनिट होता है ना, टाइम का जो हम लोग क्या यूनिट देना है, और टाइम एंड स्पीड का यूनिट क्या होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट of time and speed. The basic unit of time is second. The basic unit of time is second. You can write this in your notebook as a note. You can write this. The basic unit of time is second. Its symbol is S and symbol is also S. Larger unit of the time are minute. And सबसे जो हम लोग बेसिक हम लोग यूज़ करता है ज़्यादा, वो क्या है, सेकेंड है। फिर उसका सिंबल क्या है, एस है, और उससे जो लार्जर है उसको क्या बोलेगा, मिनट। तो उसको हम लोग क्या डिनोट करता है, MIN। देन आवर, तो आवर के लिए H। ओके, यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट आर रिलेटेड टू अनदर। ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है, आई विल टेल यू। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो ऐसे दोनों क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। देन अगेन 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अंडरस्टूड? व्हाट शुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम तो हो गया। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा। नाउ बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड का बेसिक यूनिट क्या होगा, सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का क्या होता है, इस स्पीड हमें कैसे पता चलता है, उसका डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने से हमें स्पीड पता चलता है। तो
तो उसमें क्या क्या यूनिट आएगा, उसमें डिस्टेंस का भी यूनिट आएगा और टाइम का भी यूनिट आएगा, है कि नहीं। उसमें क्या आएगा, एक तो डिस्टेंस का भी आएगा और टाइम का भी आएगा। तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस पर टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। तो उसको क्या बोलता है, मीटर पर सेकेंड, मीन्स मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब है मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। ऑफ कोर्स इट कुड also be expressed in another unit such as meter per minute और kilometer per hour। इसको क्या बोलेगा, मीटर पर मिनट, और दिस वन इज मीटर और किलोमीटर पर आवर। सो देयर आर थ्री, वन इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड, meter per minute and kilometer per hour. You must remember that the symbol of all unit are written in singular। ये सब हमें कैसे लिखना है, सिंगुलर लिखना है। सिंगुलर मतलब क्या है, सिंगल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि किलोमीटर, तो किलोमीटर में हम लोग को एस नहीं लगाना है, ओके, किलोमीटर में एस नहीं लगाना है। जैसे कि सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर में एस नहीं लगाना है, क्या लिखना है, ओनली सेंटीमीटर, ओके। अगर मीटर है देन ओनली मीटर, उसमें एस नहीं लगाना है, अंडरस्टूड। Now come to the next point. Different unit of time are used depending on the needs. For example, मतलब हम लोग डिफरेंट यूनिट कैसे कब यूज़ करता है, मतलब जिसका हिसाब से, मतलब जिसका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें उसका यूनिट यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कन्वीनियंस टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स। तो हम लोग का जो ईयर होता है, साल होता है, तो मतलब हम लोग का कितना ईयर्स हो गया, वी विल नॉट से हाउ मेनी मंथ, इट्स नॉट इट। तो मंथ, अगर मंथ बोलेगा, तुम सपोज अभी 13 ईयर्स का है, तो 13 ईयर्स नहीं बोल के अगर उसको मंथ में कन्वर्ट करेगा तो वो बहुत बड़ा नंबर होगा, बड़ा डिजिट होगा। तो जो मतलब कन्वीनियंस है, जो इजी है, लिखने के लिए इजी है, पढ़ने के लिए इजी है, वो हम लोग को यूज़ करना है, वो यूनिट यूज़ करना है। सपोज यू आर 12 ईयर्स ओल्ड, फिर उसको ईयर्स नहीं बोल के मंथ में बोलना है, तो उसको क्या 12 × 12 फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो बहुत बड़ा डिजिट हो गया। इसलिए जो जैसे कन्वीनियंस होता है हमें ऐसे यूज़ करना है। फिर हम लोग आवर में तो यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा जन्म हो के दो घंटा हो गया तो उसको हम लोग घंटा यूज़ करेगा। बट अगर वो 1 साल का हो गया तो उसको 1 साल को अगर घंटा में करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 360 को हमें मल्टीप्लाई करना है एक दिन में, 24 तो 24 से मल्टीप्लाई, तो वो कितना बड़ा डिजिट हो जाएगा। तो वो बोलने के लिए भी क्या होगा, अजीब होगा। इसलिए हम लोग जैसे कन्वीनियंट तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं, अंडरस्टूड। सिमिलरली इट इज़ नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ए ईयर the time taken by you to cover the distance between your home and your school। so distance हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है अपना घर से और स्कूल तक का। तो उसको हम लोग ईयर थोड़ी यूज़ करेगा, उसको हम लोग क्या यूज़ करेगा, उसको हम लोग किलोमीटर, और अगर हम लोग मीटर यूज़ किया तो मीटर भी बहुत बड़ा डिजिट। अगर सेंटीमीटर स्केल से अगर नापने लग गया उसको, तो कितना टाइम लगेगा उसको। कन्वीनियंस जैसे ज़्यादा ईजी होता है, हमें उस टाइप में यूज़ करना है। The pulses of normal healthy adult at rest beat 72 time in a minute, that is about 12 time in a second। मतलब जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है उसका जो हार्ट बीट है 72 टाइम हार्ट बीट होता है 1 मिनट में। इन 1 मिनट इट बीट्स 72 टाइम, that is about 12 टाइम in 10 सेकेंड। मतलब 12 टाइम 12 टाइम 12 टाइम क्या होता है, हार्ट बीट होता है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में। इसलिए 10 10 10 10 फिर कितना 1 मिनट में 60 होता है कि नहीं, डेट इज़ वाई ये टोटल कितना हुआ 72 मिनट हार्ट बीट होता है। नाउ कम टू 13.4 फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल कैन अटेन। मतलब कोई एनिमल क्या होता है, बहुत फास्ट दौड़ सकता है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्वेश्चन 1 में दिया है फेल्कॉन। तो फेल्कॉन का स्पीड कितना दिया है, 320 किलोमीटर पर आवर। तो उसको किस यूनिट कौन सा इसका, किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है, नेक्स्ट कॉलम में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकेंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 320 किलोमीटर, तो किलोमीटर को क्या बनाना है, मीटर। सो वी ऑल नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 मीटर। तो 320 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। फिर नीचे क्या करना है, पार का मतलब क्या होता है, डिवाइड, इट्स नॉट इट। सो पार मतलब डिवाइड करके फिर आवर में कितना होता है 60 कि नहीं, 60 क्या होता है, मिनट होता है। तो 60 मिनट को वापस फिर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आवर के लिए एक 60 हो गया ना, फिर ये 60 को भी किस में कन्वर्ट करना है,
60 मिनट है, ठीक है। ये 1 आवर था, फिर उसको मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 मिनट, फिर 60 मिनट को फिर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए नीचे 60 इंटू 60, तो 1000 में से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया और नीचे से भी 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। सो नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया 6 6 36, 6 6 36 और 320 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो कितना होगा 3200। तो 3200 को 36 से अगर डिवाइड करेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करके, इसमें से मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको स्क्रीनशॉट फ़ोटो सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उससे देख के रिमेनिंग जो 5 6 7 8 है ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देयर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर that measure the distance covered by the vehicles. This meter is known as odometer. So this is very important, keep it mind. ये कोई कंपटीशन में भी आ सकता है। सो ओडोमीटर क्या है, जो व्हीकल स्कूटी हो गया, जो बाइक हो गया, तो उसमें क्या होता है, एक ओडोमीटर होता है, ठीक है। फिर उस ओडोमीटर से देख के पता चलता है कि ये कितना किलोमीटर कवर किया है। अंडरस्टूड। While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. तो मतलब क्या हो रहा है, एक स्कूल में पिकनिक जैसे कि जाता है ना, तो ऐसे पिकनिक जाते समय पहली ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि एवरी 30 मिनट में वो क्या करेगा, ओडोमीटर को ऑब्जर्व करके फिर उसको लिखेगा, ठीक है। Later on, she recorded her reading in table 13.5. So, come to 13.5. This is 13.5. Odometer reading at the different time of the journey. So, you can say 8 AM. So, उसने कब से स्टार्ट किया, टाइम 8 AM से स्टार्ट किया। तो ओडोमीटर का जो रीडिंग था वो कितना था, 36,540 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर 0 किलोमीटर। तो जहाँ पे उन लोग था, मतलब स्कूल में था, सपोज स्कूल से ही तो जाएगा ना सब पिकनिक आने के लिए, तो पहले से स्कूल में गैदर होगा, तो उससे मतलब जब गाड़ी चलाने से पहले उसने ओडोमीटर रीडिंग किया था, ओडोमीटर मतलब देखा था, तो उसमें कितना किलोमीटर, 36,540 था। नाउ 8:30, एवरी 30 मिनट्स बोला था ना, तो 8:30 में फिर उसने देखा, उसमें रीडिंग कितना आया है, 36,560। तो उसमें कितना कवर किया उसने, 20 किलोमीटर कवर किया। कितना, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये इतना मतलब वो पहले ही चला चुका है, ठीक है। फिर अभी वो 8 से 8:30 तक मतलब 30 मिनट हुआ है, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 किलोमीटर। फिर 9 में उसका कितना हुआ है, 9 में हो गया 36,580, तो ये कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। फिर 9:30 को कितना, 60 किलोमीटर। फिर 10 को कितना, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर का बाद शायद उसने अपना जगह पहुंच गया होगा, पिकनिक डेस्टिनेशन है कि नहीं, तो उसने इतना ही रीडिंग किया। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ कम टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यू माइट हैव सीन that newspaper, magazine, etc. present information in the various form of graph to make it interesting. So the type of graph shown in 13.8, you can see the figure here, 13.8 is known as bar graph. तो मैथ्स में भी इसको मिला है, क्लास 7 का मैथ्स में भी है और 6 में भी है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ कितना टाइप का होता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऐसे सो मेनी ग्राफ्स आर देयर। सो बट दिस ग्राफ इज कॉल्ड व्हाट, बार ग्राफ। नाउ यू कैन सी दिस वन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड पाई चार्ट एंड दिस इज़ व्हाट, लाइन ग्राफ। और जो पहले हम दिखाया था वो क्या था, बार ग्राफ था। अंडरस्टूड। टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर। तो हमें किसे ग्राफ बनाना है, टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ 2 लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री उसको ड्रॉ करना है। दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है कि नहीं, वो बनाना है। मैथ्स में ग्राफ बनाता है उसमें क्या हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करता है कि नहीं, बट साइंस में जब हम लोग टाइम ग्राफ बनाता है उसमें टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, पीछे हम लोग नहीं जा सकता है, कोई पीछे जा सकता है नहीं ना। सो हियर वी विल यूज़ ओनली द पॉजिटिव पार्ट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, हमें सिर्फ पॉजिटिव ही यूज़ करना है इसमें। यू कैन सी दिस, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, तो इसको ही हमें यूज़ करना है।
only this positive part, because these are negative. ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, और ये पार्ट भी नेगेटिव, ये पार्ट भी नेगेटिव, तो इसको हमें यूज़ नहीं करना है. तो साइंस में हमें कौन सा पार्ट, यही पार्ट देखना है, ओनली द पॉजिटिव पार्ट. नाउ टेबल 13.6 द मोशन ऑफ ए कार. इसमें कुछ कार का मोशन दिया है. टाइम 0 मिनट, फिर डिस्टेंस 0. तो 0 मिनट मतलब टाइम लिया ही नहीं, चलाया ही नहीं, तो डिस्टेंस 0 ही होगा ना. फिर उसका बाद 1 मिनट, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 मिनट 2 किलोमीटर, फिर 3 मिनट 3 किलोमीटर, 4 मिनट 4 किलोमीटर, फिर 5 मिनट तो 5 किलोमीटर. मतलब वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 मिनट. फिर 2 मिनट में 2 किलोमीटर. सो ग्राफ देखने से पता चलेगा सबको. सो दिस वन, ये क्या है, OX, और ये OY, और ये टाइम टेकन है, और ये क्या है, डिस्टेंस. तो टाइम का भी 1 मिनट में कितना था, 1 किलोमीटर, इसलिए ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट. और 0 मिनट में 0 किलोमीटर, फिर और एक 1 किलोमीटर में 2 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर 3. तो 3 का क्या होगा, यहाँ से सीधा जाएगा और यहाँ से सीधा, तो कौन सा होगा, ये पार्ट होगा. तो फिर 4 का भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और 4 यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ये. So if the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed. जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है. कांस्टेंट मतलब इक्वल स्पीड में, 1 किलोमीटर, फिर 1 ही किलोमीटर, फिर 1 ही किलोमीटर, ऐसे क्या हो रहा है, इस कांस्टेंट में, एक ही मतलब कांस्टेंट में जा रहा है. दैट इज़ वाई द ग्राफ वी गोट इज स्ट्रेट लाइन. So from here the main important thing is that when you will draw a graph and you will get a straight line, it will go in a constant, means it will be constant. वो जो क्या होगा, उसका मूवमेंट जो constant स्पीड में जाएगा. If the speed of the object keeps changing, उसका जो स्पीड चेंज होते रहेगा. 1 मिनट में एक बार 1 किलोमीटर गया, फिर 1 मिनट में एक बार 2 किलोमीटर, ऐसे अगर स्पीड चेंज होगा तो उसका जो शेप होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. मे बी वो कर्व लाइन हो सकता है, मे बी मतलब कैसे भी अदर शेप, बट स्ट्रेट नहीं होगा. फॉर दिस ऑल्सो, ये क्या हो गया, टाइम, और ये हो गया उसका डिस्टेंस कवर. सो फॉर दिस ऑल्सो वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ. अंडरस्टूड. फॉर दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बस. तो उस बस का कब से स्टार्ट हुआ था, 8 से स्टार्ट हुआ था, 8 AM से स्टार्ट हुआ था, 8 AM, देन 8:30, फिर 9, फिर 9:30, फिर 10, फिर कितना किलोमीटर, 8 से 8:30, 8 से 8:30 तक. सो दिस इज़ 8:30, कितना किलोमीटर, 20. ये हो गया एक पॉइंट. देन अगेन अनदर एट 9 o'clock, 9 AM में कितना गया था, 40 किलोमीटर. सो दिस वन and join with 40, this is 40 kilometer. Then 9:30, how much, 60 kilometer. So now the graph you can see here, you can see this graph also you are getting straight line. That means इसका जो speed है ये भी constant है. constant मतलब that means in every 30 minutes they are going how many kilometer, 20 kilometer. So thank you all of you for chapter 13. I have explained only this much. In my next video I will include the exercise part, and also I will give you some assignment. Hope you all understood very well. If you have any doubt or you any queries, you can ask me without any hesitation. Thank you all of you and have a great day.